yesterday we have also discussed this experimental work, and we are proving that ki DNA or protein, in this experiment we will know that after conducting this experiment ki DNA is genetic material, DNA is genetic material or protein is genetic material. तो we have to prove in this experiment. हर्षे और चेज ने क्या किया, प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एंड when would you call the genetic material, what should be the criteria, right? तो DNA is genetic material or protein is genetic material, that we have to prove it in this experiment. तो हर्षे एंड चेज प्रूव दैट कि DNA is genetic material, right? फर्स्ट टाइम, जैसे इससे पहले भी एक्सपेरिमेंटल वर्क हो चुका है, ग्रिफिथ हैव डन दिस वर्क बट ही हैड नॉट कंक्लूडेड दैट DNA is genetic material. His supporter Avery McLeod, McCarthy, they proved that DNA is genetic material. Similarly, another experiment is also conducted. Similar experiment is also conducted by Hershey and Chase. Experiment support that DNA is genetic material. कि DNA genetic material है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसको हम हर्षे और चेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं. तो इन दिस एक्सपेरिमेंट हर्षे एंड चेज हैज टेकन two organism. He has taken two organism in his experiment, right? Bacteria, he has taken bacteria, and what other thing he has taken, tell me? Another thing he has taken bacteriophage. तो हर्षे एंड चेज taken two organism in his experiment, bacteria and bacteriophage, right? And I have told you earlier कि bacteriophages are those viruses which eat the bacteria. Bacteriophages बेटा क्या है? तो I have told you earlier in last video कि bacteriophages are those which attack on bacteria. Bacteriophages क्या है? एक तरह के viruses हैं. और कैसे viruses हैं? जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, राइट? जो बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे, those viruses are called bacteriophages. So similarly you can see here कि bacteriophage like these viruses attack on these bacteria. That's why these are bacteriophages. So you can see here, and I have told you कि this experiment have been conducted in 3 steps: infection, blending, centrifugation. तो I am recalling you कि यहाँ पर जो important thing है, you have to learn here कि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के 2 पार्ट्स की हम स्टेनिंग करते हैं, एंड इन 2 स्टेप्स वी आर कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट. 2 पार्ट में ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं. नाउ इन फर्स्ट पार्ट वी विल डू द लेबल द प्रोटीन कोड. फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? प्रोटीन कोड को लेबल करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम प्रोटीन लेबल करेंगे. प्रोटीन इज लेबल्ड. और किससे लेबल होती है प्रोटीन? प्रोटीन इज लेबल्ड बाई S35, राइट? लेबल्ड का मतलब यहाँ कलर करने से है, ध्यान रखिए, ठीक है? रेडियो एक्टिव सल्फर. एंड इन सेकेंड पार्ट द DNA इज लेबल्ड बाई रेडियो एक्टिव फास्फोरस, राइट? रेडियो एक्टिव फास्फोरस. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप in 2 parts. In first part we will label the protein of bacteriophage by S35, radioactive S35 sulfur, and in second part we will label the DNA of other bacteriophage by phosphorus 32, right? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन दोनों से अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेल पर इन्फेक्शन करा देंगे, राइट? यू आर सीइंग हियर, ठीक है? सेकेंड पार्ट में हम क्या कराएंगे? इन्फेक्शन करा देंगे. नाउ we will see after in blending, right? In blending now we will see कि DNA is entering in bacteria, but we can see the DNA only in second part. हम second part में ही DNA को देख सकते हैं. Then reason is because DNA is labeled by radioactive phosphorus. हमने radioactive phosphorus से label कर दिया था, कलर कर दिया था. That's why we are able to see that bacteria will enter into the बैक्टीरिया, राइट? बट प्रोटीन कोट विल रिमेन आउटसाइड. जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन विल रिमेन आउटसाइड. ये प्रोटीन बाहर रहेगा बिकॉज वी लेबल दिस प्रोटीन बाई S32. तो क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है? प्रोटीन को लेबल किया है रेडियो एक्टिव सल्फर से, और यहाँ क्या किया है? हमने DNA को लेबल किया है. तो
इट डज मीन दैट प्रोटीन विल रिमेन आउटसाइड, प्रोटीन क्या करेगा, विल रिमेन आउटसाइड, ये आउटसाइड रहेगा, दैट्स वाई दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए genetic material, this is being proved here. And DNA क्या है, DNA enter into the bacteria, ये क्या कर रहा है, ये DNA बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर चुका है, दैट्स वाई DNA इज जेनेटिक मटेरियल, और इसके वजह से DNA क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसको आप और अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू in next slide, I am showing you, wait, now in this slide it will be clear more कि why should be the DNA is genetic material and why should not be protein is genetic material। ठीक है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, राइट, प्रोटीन, हर्शे एंड चेस प्रूव दैट प्रोटीन नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, right, but he proved that DNA is genetic material, DNA is genetic material, right। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हर्शेस ने क्या प्रूव किया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, बट प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट टाइम दे प्रूव्ड इट, ओके, in 1952 they proved it, but the Griffith experiment had conducted, before conducting this experiment, Griffith experiment conducted in 1928, ये आप थोड़ा सी चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक है, 1928, but this experiment have been conducted in 1952, right, so this experiment have been conducted in 1952, so it must be clear for everyone कि when these experiment was conducted, right, so it should be clear here, it must be very clear from this slide that now you can see here कि in first part I am showing you कि the protein is not a genetic material, किस तरह से जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सो इन दिस स्टेप यू विल नो हियर कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया, देखिए, जस्ट यू कैन सी इजली, राइट, प्रोटीन कोड लेबल्ड बाय रेडियो एक्टिव सल्फर, यू कैन सी इजली in both part, I am showing you protein code radio labeled by sulfur, and in second step you can see then now कि प्रोटीन कोड को लेबल करने के बाद the DNA get enter but protein code will remain outside, and after centrifugation, ठीक, of these बैक्टीरियोफेजेस का जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं तो रेडियो एक्टिविटी will be appeared in supernatant, लिक्विड में रेडियो एक्टिविटी आएगी, देयर विल बी नो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, ओके, दिस विल प्रूव इट दैट कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। अगेन आई एम रिपीटिंग इन दिस स्टेप कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, हाउ यू विल प्रूव इट, तो यू विल फर्स्ट यू विल लेबल द प्रोटीन कोड बाय रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर से क्या करेंगे आप, प्रोटीन को लेबल कर देंगे, ठीक है। तो क्या इसके बाद आपको क्या होगा कि बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, आफ्टर लेबलिंग द प्रोटीन कोड ऑफ बैक्टीरियोफेज you will find that there will be no radioactivity in bacteria, it will prove it that ki protein is not a genetic material, and again you can see it if you will centrifuge, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप कर लेते हैं इसका लिक्विड बना करके, देन यू विल ऑल्सो सी कि रेडियो एक्टिविटी विल बी अपीयर इन सुपरनाटेंट, एक लिक्विड में रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, इट विल प्रूव इट कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। ये जो स्टेप है, ये स्टेप से प्रूव हो जाएगा कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, राइट, ये इस स्टेप से प्रूव हो जाएगा। बेटा are you understanding this point? Okay, now again I am explaining that here we are proving that which one is genetic material, protein is genetic material or DNA is genetic material, or DNA is genetic material। यहाँ आपको इन दोनों में से किसी एक को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करना है, ठीक है। तो हर्शे और चेज ने क्या किया, हर्शे एंड चेज prove that
कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है बट नॉट दी प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। हाउ यू विल प्रूव इट कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है? तो इसके लिए क्या किया कि बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, तो दे लेबल द प्रोटीन पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज विद सल्फर 35 and they find that कि there will be no radioactivity in bacteria। रेडियो एक्टिव सल्फर या रेडियो एक्टिव प्रोटीन की वजह से क्या होता है, या तो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में पहुंचेगी या रेडियो एक्टिविटी लिक्विड में पहुंचेगी। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो क्या होगा कि बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक। बैक्टीरिया विल नॉट हैव रेडियो एक्टिविटी बट सुपरनाटेंट विल हैव रेडियो एक्टिविटी। इन दो सिचुएशन हैं। इफ देयर विल बी नो रेडियो एक्टिविटी, आप केवल इतने पॉइंट को भी लर्न कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है कि दे लेबल प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाई S35, ओके, देन दे फाइंड दैट कि देयर विल बी नो रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, ओके। तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं पहुंची, दैट्स वाई दिस प्रूव दैट कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। एंड ऑल्सो इन सेकेंड पार्ट यू कैन सी कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट विल हैपन कि रेडियो एक्टिविटी यू विल फाइंड इन सुपरनेटेंट, जो लिक्विड है उसमें रेडियो एक्टिविटी पहुंचेगी। अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इन केस ऑफ डीएनए। यहाँ जो डीएनए का केस है, यहाँ पर हमने अभी तक सीख लिया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों नहीं है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर हम बात करेंगे तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक। अब तक हमने जो बात की थी वो क्या बात की थी, प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, देन हाउ। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो डीएनए है उसको हमने लेबल कर लिया, ठीक है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि प्रोटीन नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, तो उसके लिए हमने क्या किया था, प्रोटीन को लेबल किया था, ठीक। और उस समय जो बैक्टीरिया थे उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। नाउ अपोज टू दैट ऑफ प्रीवियस स्टेप, अब पहले का अपोजिट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर डूइंग लेबलिंग द डीएनए। अब हम डीएनए को लेबल कर रहे हैं। नाउ डीएनए इज लेबल्ड बाय फास्फोरस, और डीएनए किसके जरिए लेबल होगा, P32, राइट। डीएनए लेबल कर रहे हैं हम। अब डीएनए लेबल करने के बाद अब हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में पहुंच चुकी है। बैक्टीरिया विल हैव रेडियो एक्टिव because DNA will enter, bacteria having radioactivity, ठीक। तो दिस विल प्रूव दैट कि DNA इज जेनेटिक मटेरियल, ओके। और सेंट्रीफ्यूगेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। सेंट्रीफ्यूगेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा कि वी विल नॉट फाइंड द रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट, वी विल फाइंड द रेडियो एक्टिविटी इन पैलेट। पैलेट का मतलब देखिए, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो दो लेयर बनती हैं, एक तो बनता है लिक्विड और एक बनता है पैलेट। ये दो पार्ट होते हैं। अगेन आई एम शोइंग यू, यहाँ पर आपको मैं फिर से शो कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सुपरनाटेंट है, सुपरनाटेंट, दिस वन इज सुपरनाटेंट, ठीक। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि इफ देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया and if there is radioactivity in supernatant, this will prove that protein not a genetic material। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। एंड इफ देयर इज रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, देयर इज रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, ओके, सो दिस विल प्रूव दैट कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो इससे आपका प्रूव हो जाएगा कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? और कुछ पूछना है बेटा? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क हियर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग। इन फर्स्ट स्टेप वी आर प्रूविंग दैट कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक। प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, ये हर्षे और चेज ने प्रूव किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही लेबल दी प्रोटीन कोड। उन्होंने बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन को लेबल कर लिया S35 से, ठीक। एंड देयर आफ्टर इन बैक्टीरिया में क्या हुआ, फिर
बैक्टीरिया में देयर विल बी नो रेडियो एक्टिविटी। ठीक, प्रोटीन कोड को लेबल करने के बाद अगर बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है और सुपरनाटेंट में रेडियो एक्टिविटी है, तो इट विल प्रूव दैट कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, राइट। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट वी प्रूव दैट, इट मीन टू से लाइक वी लेबल दी डीएनए। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम डीएनए को लेबल करते हैं और किससे लेबल करेंगे? फास्फोरस से, P32 फास्फोरस से लेबल करेंगे डीएनए को। और हम देखेंगे कि इन बैक्टीरिया देयर विल बी रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, और जब बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी तो इट विल प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही कॉन्सेप्ट तो हैं। इफ देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी, इफ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इफ देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, इट डज मीन दैट प्रोटीन नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है अगर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में नहीं है तब। ठीक, सेकंड केस में क्या है? इफ देयर इज रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, इफ देयर इज रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी है तो इट विल प्रूव दैट कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो दो ही तो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर। दो ही कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? या तो आपको प्रूव करना है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, या आपको प्रूव करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन को हम लेबल कर देते हैं इसके लिए, और इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। सेकंड केस में क्या करते हैं हम? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डीएनए को P32 से लेबल कर देते हैं। एंड नाउ फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें वी विल फाइंड दी रेडियो एक्टिविटी, तब बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। तो इन दो केसेस से वी विल क्लियर इट दैट कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? आई थिंक दैट एवरीवन हैव गॉट इट क्लियरली। ठीक है, दो ही पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं, एक तो प्रोटीन। ठीक है, एट लास्ट आई एम टेलिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग अगेन कि इफ प्रोटीन नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, इफ प्रोटीन नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, it does mean that there will be no radioactivity, there will be no radioactivity in, बताइए किसमें? इन बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है तब। और इसको हम कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम प्रोटीन को S35 से लेबल करेंगे और यहाँ पर हम ये इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इन्फेक्शन कराएंगे बैक्टीरिया में या हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो क्या करना है? तो इसके लिए हमें क्या होगा कि इन बैक्टीरिया, नाउ इन दैट केस द बैक्टीरिया विल शो द रेडियो एक्टिविटी। और इसके वजह से क्या होगा? अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसके वजह से क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी शोन बाई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि डीएनए को हम लेबल कर देंगे। किससे लेबल करेंगे बेटा? P32 से। ठीक, तो P32 से हम लेबल करेंगे डीएनए को, जिससे कि बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी होना शो हो जाएगी। तो इससे हमें प्रूव हो जाएगा कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक, प्रोटीन के केस में बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी और डीएनए के केस में बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी होगी। These are only two purposes. Okay, thank you. Any other problem?